ہم محب الوطن پاکستانی ہیں، پاکستان کے پرچم کا، پاکستان کے ترانے کا، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کا، پاکستان میں جمہوریت کے ہم علم بردار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ آج سے نہیں، جب سے پاکستان بنا ہے ہم ہیں، اسی طرح ابھی بھی ہیں اور اسی طرح ہمیشہ رہیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل۔ تو جناب آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے اڈیالہ جیل کے حوالے سے۔ جمعرات کا دن بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کا دن، اور گزشتہ رات جو جیل انتظامیہ کو جو فہرست فراہم کی گئی تھی 6 افراد کی، ان میں نام تھے معین قریشی جو کہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے، فردوس شمیم نقوی جن کا تعلق کراچی سے، علامہ ناصر عباس صاحب کا نام بھی اس فہرست میں شامل تھا، جبکہ جنید اکبر خان، مینا خان اور تیمور خان جگڑا کا کے پی کے سے تعلق ہے، ان کا بھی نام فہرست میں شامل تھا۔ لیکن آج جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس وقت بانی پی ٹی آئی کی ملاقات کے لیے ہم اس کی کوریج کے لیے جب ہم اڈیالہ جیل پہنچے ہیں داگل کے مقام پر، تو یہ خبر آئی کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی ایک بار پھر تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے آنے سے قبل کچھ وکلا آئے جنہوں نے ایک نئی فہرست جس میں کہ ایک نام تبدیل کیا ہوا تھا اور وہ نام سہیل آفریدی کا تھا، اور وہ فہرست جیل انتظامیہ کو دی۔ اس کے کچھ دیر بعد اڈیالہ جیل پہ ہم نے دیکھا کہ داگل کے مقام پر جو سیکیورٹی سٹاف ہے وزیر اعلیٰ کا وہ بھی پہنچا، اور شمیم نقوی صاحب سب سے پہلے داگل کے مقام پر پہنچے۔ پولیس کی کافی نفری وہاں پر موجود تھی، اور جتنے بھی رہنما وہاں آ رہے تھے ان کو وہاں پر داگل کے مقام پر روکا گیا۔ لیکن اطلاعات کے مطابق جس وقت وزیر اعلیٰ کے پی کے اڈیالہ کے علاقے میں انٹر ہوئے تو انہوں نے جو عام روٹ ہے اس کا اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ براستہ بیریا ٹاؤن ہوتے ہوئے گورکھپور کی طرف آئے، جہاں سے وہ فیکٹری ناکہ پہنچے، اور فیکٹری ناکے پر آ کر انہوں نے انتظار کیا کہ ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی، اور وہیں پر جو ہے علامہ ناصر عباس صاحب پہلے سے موجود تھے جن کا نام فہرست میں شامل تھا، جبکہ فردوس شمیم نقوی صاحب بھی وہاں پر فیکٹری ناکہ پر جا کر پورا جمان ہو گئے۔ بات کریں گے ہم سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے کہ گزشتہ دنوں ان کی میزبانی میں کے پی کے میں ایک امن جرگے کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی، اور اسی جرگے میں پشتون قومی موومنٹ جسے کہ پی ڈی ایم کہا جاتا ہے، تحفظ موومنٹ، اس کے وفد نے بھی شرکت کی۔ اور جس وقت اس امن جرگے کا آغاز ہوا تو باقاعدہ طور پر پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا گیا، جس کے احترام میں ہر پاکستانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ جو پی ڈی ایم کے جو ارکان وہاں پر موجود تھے وہ انہوں نے قومی ترانے کا احترام نہیں کیا اور اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، جو کہ پورے پاکستان کی میں جس پر کافی تنقید کی گئی، اور تنقید کا نشانہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ایز اے پاکستانی ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اس پاکستانی قومی ترانے اور پاکستانی پرچم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تو ہمیں بھی یہ بات کل معلوم تھی، اور ہم نے آج موقع کا انتظار کیا کہ جیسے ہی وزیر اعلیٰ کے پی کے جب اڈیالہ کے مقام پر اگر آتے ہیں تو ہم ان سے آج اپنا سوال رکھیں گے، اور ہم نے آج سہیل آفریدی کے سامنے اپنا سوال رکھا کہ آفریدی صاحب، آپ کی امن جرگے میں جب قومی ترانہ سنایا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے تو اس کے احترام میں تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ماں سوائے چند لوگوں کو، کیا آپ اس کی مذمت کریں گے اور اس عمل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو جس پر سہیل آفریدی نے جس کی مذمت کی اور کہا کہ قومی ترانہ جب پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے تو ہم سب ایز اے پاکستانی جھنڈا اور پاکستانی قومی ترانے کا جو احترام ہے یہ ہم پر فرض ہے، اور ہم سب اس کا احترام کرتے ہیں۔ جو اگر کوئی شخص قومی ترانے کے احترام میں نہیں کھڑا ہوتا تو یہ اس کا ذاتی فعل ہو سکتا ہے، یہ ہمارے امن جرگے کا کوئی پیغام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ 2 بندے غائب ہوئے ہیں، وہ ہمارے قبائلی اور پختون روایات کے خلاف کیے گئے ہیں۔ جرگہ ہمارا جو ہے وہ پختون روایات ہیں۔ جرگے میں لوگ آنے سے لے کر وہاں بیٹھنے سے لے کر پھر واپس جانے تک اور اپنے گھر پہنچنے تک یہ جو ہے جرگے کے مہمان ہوتے ہیں۔ جس نے بھی یہ کیا ہے اس نے ہماری پختون روایات توڑے ہیں۔ جس نے بھی یہ کیا ہے
वो हमारे पख्तून कौम के अमन का दुश्मन है। जिसने भी ये किया है वो नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए। जिसने भी ये किया है वो पख्तून कौम का, पख्तून रिवायात का और इस जरगे का, पख्तूनख्वा में अमन का, खैबर पख्तूनख्वा में अमन का वो दुश्मन है। मैं कोर कमांडर साहब से भी ये कहता हूँ कि आप नीचे देखें जिसने भी ये किया है, क्योंकि इसका रद्द-ए-अमल बहुत सख्त आएगा। इसमें जो है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, ये सब हमारे मेहमान थे। इसमें फिर हम जो है मुद्दी बनेंगे। तो ये जो है बहुत गलत काम किया है जिसने भी किया है। मैंने पुलिस से पूछा, एक बात मैं बात पूरी करने दें मुझे। इस तरह अगर फर्ज करें खैबर पख्तूनख्वा की पख्तून और कबायली रिवायात को अगर तोड़ा जा रहा है और उसमें जो है हमारे अमन को नुकसान हो रहा है, पख्तूनों का नुकसान हो रहा है, सूबे का नुकसान हो रहा है, तो मैं वाज़ा पैगाम देता हूँ कि उस पर रद्द-ए-अमल आएगा और वो बहुत सख्त होगा। दहशतगर्द अगर वो मेरे घर तक पहुँचते हैं, अगर वो मेरे इलाके तक पहुँचते हैं, वो इस्लामाबाद तक पहुँचते हैं, ये मेरा फेलियर नहीं है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। पहली बात, उनको चाहिए कि मतलब जहाँ से जो है वो इंटर हो, जिस जगह से भी हो, वहाँ पर इनको रोका जाए। पहली बात। दूसरी बात कि दहशतगर्द का ना कौम होता है, ना मज़हब होता है, ना मुल्क होता है, वो दहशतगर्द होता है। उसके लिए ज़रा बराबर भी जो है रियायत, मैं कहता हूँ कि वो इंसान दुश्मनी भी है और मुल्क दुश्मनी है, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ताने बाने जिस भी मुल्क से उनके टच हो, उनको सामने लाया जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए। पहली बात। अच्छा, जिरगे में पीडीएम की जानिब से कौमी तराने के एहतराम में नहीं खड़े हुए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी इस हरकत को कंडम करेंगे, क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी? एज अ पाकिस्तानी देखें, मैं ना जज हूँ कि किसी को मैं गलत और सही कहूँ, ना मैं वकील हूँ कि मैं किसी की वकालत करूँ। वहाँ हाल में जितने भी लोग थे कौमी तराने के एहतराम में वो खड़े हुए, और ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो कौमी तराने का एहतराम करें, पाकिस्तानी परचम का एहतराम करें और मुल्क में जो है आईन और कानून का एहतराम करें। ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। अगर फिर किसी के ग्रीवेंसेस हैं तो वो उनको सुना जाए जिस किसी के भी हो। ये किसी की ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन ये जरगे का पैगाम ये नहीं था। अगर किसी चीज़ से अगर किसी यार जवाब तो पूरा करने देना मुझे यार। जी। ऐसी तमाम हरकत जिससे एंटी पाकिस्तान होने का स्मेल आए किसी को भी, वो किसी को भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना नहीं चाहते, जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को एंटी स्टेट। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कंडम किया, मजम्मत की, तमाम तर जो वाक़या हुआ उसकी भरपूर अंदाज में उन्होंने मजम्मत की, और हालिया जो दहशत गर्दी के वाक़यात है उस हवाले से भी उनकी हमारी उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने उसकी भी मजम्मत की और कहा कि दहशत गर्दों का हर सूरत में कला कमा किया जाना चाहिए और जहाँ से वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं उनको वहीं रोका जाए ताकि वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल ना हो सके, और ऐसे लोगों की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए जो दहशतगर्द है, और ये हकाइक जो है अवाम के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सुहेल आफरीदी अपना टाइम मुकर्रर वक्त तक फैक्ट्री नाका के मुकाम पर इंतज़ार करते रहे कि काश कि उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात होगी, लेकिन आज भी उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, जिसके बाद वो अडियाला जेल से रवाना हुए और रवानगी से कबल एक बार फिर उन्होंने मीडिया से बातचीत की, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। मैं तो यही कहूँगा इनसे कि क्यों जिद लगाएंगे, बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, छोड़ रहे नहीं है। मेरा लीडर है, मेरा कायद है, एक विजनरी लीडर है, और अगर उसकी गाइडेंस होगी तो खैबर पख्तूनख्वा मजीद तरक्की करेगा, और इनको ये पता है कि इनसे मुल्क नहीं संभल रहा। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जिस तरह कोविड के दिनों में जहां पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही थी, मेरा लीडर, मेरा कायद जो है वो यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गया, उस हालात में मुल्क को संभाला, तमाम जितनी भी हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे उनको पॉजिटिव किया, हमारा जीडीपी ग्रोथ कर रहा था, हमारा
फॉरेन डेफिसिट जो है वो कम हो रहा था, हमारे फॉरेन रिजर्व ज्यादा हो रहे थे। तो एक विजनरी लीडर के साथ अगर मैं मिलना चाह रहा हूँ और वो मुझे कुछ गाइडेंस देंगे तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा की फायदे के लिए होंगे, मिलने दें। वहाँ ऐसे मैंने जो है कोई एटमी ताकत डिस्कस करनी है कि आप लोग डरे हुए हैं, छोड़े रहने दें। हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अगर वो सिद्ध के दिल से और जो है उनकी इंटेंशंस ठीक हों और ईमान मजबूत हो तो आप किसी भी फोर्स को जो है कमजोर ना समझें। हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो फौज है, चाहे हमारे पुलिस है, चाहे सीटीडी है, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह ये ताकत रखती है कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को वो रोक सकती है। पास चेक पोस्ट जो हम चाहते हैं कि पुलिस के हवाले हों, वहाँ पर जो है ये ऑलरेडी क्लियर डिक्लेयर कर चुके हैं। और जहाँ पर जो है थोड़ा बहुत हमें चांस मिल रहा है ताकि फौज अपना काम करे। फौज का काम है बॉर्डर की हिफाजत करना, तो हम उनको इसलिए फारिग कर रहे हैं कि वो बॉर्डर पे जाएं और यहाँ पर जो हमारी पुलिस है वो अपने चेक पोस्ट पर। ये आपको किसने बताया कि मेरी कोऑर्डिनेशन नहीं है? सबसे पहले रिक्वेस्ट मैंने की अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाएं, उन्होंने नहीं करवाई। तो कोऑर्डिनेशन तो मैं कर रहा था, वो नहीं कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात कराएं। जो बाकी मामला यार मुझे ये बताएं कि मेरा लीडर मेरा काय जनाब इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर हैं, उसकी वजह से हमें वोट मिला है, उसकी वजह से मैं वज़ीर आला बना हूँ, उसकी वजह से जो है पाकिस्तान 2018 से लेकर 2022 तक तरक्की कर रहा था। वो विजनरी लीडर है, उसकी विजन के मुताबिक मैं चलूंगा तो मुझे पता है कि इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा मजीद तरक्की करेगा। अगर मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ तो इसमें क्या कबाहत है, क्यों मुझे मिलने नहीं दिया? जब तक मुलाकात नहीं होती क्या सुबह रुका रहेगा? गाइडलाइन लेनी जरूरी है ना, रुका तो वो नहीं है। इफ्तिताह भी हो रहे हैं, तरक्की के काम भी हो रहे हैं, गवर्नेंस भी हो रही है, बाकी इंतजामी जो मामलात हैं वो भी दब के चल रहे हैं, लेकिन मिलूंगा तो। देखिए जी, जब पहली मुलाकात या पहली बात में इस तरह की बात आए तो मेरे ख्याल में फिर जो है बात करना नामुनासिब इसलिए है कि इख्तियार किसी और के पास है। तो हम चाहते हैं अच्छा जितनी भी जमहूरी तरीक़ाकार है, क्योंकि मैं जमहूरी बंदा हूँ, मैं जमहूरियत पर बिलीव करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी मुल्क में जितनी जमहूरियत मजबूत होगी उतना पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो जितने भी जमहूरी रास्ते हैं वो मैं अपना रहा हूँ और इसके बाद जो थोड़े बहुत रहते हैं वो भी आजमा लेंगे। फिर जमहूरियत में एक और चीज भी है, फिर उसकी तरफ जाएंगे। और नाज़रीन, इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी दूसरी और टॉप स्टोरी है। गुज़श्ता रोज जो होने वाले पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात, जो कि इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ जिसमें 12 अफराद शहीद हुए जबकि 20 से ज़ायद जिसमें ज़ख्मी हुए, और इसी तरीके से एक जो वाना में कैडेट कॉलेज में एक खुदकश धमाका हुआ और उसके बाद दहशतगर्दों की जानिब से जो मासूम तालिब इल्म है उनको यरगमाल बनाया गया। तो जिसके बाद जो सिक्योरिटी सूरत हाल है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और ख़ुसूसन KPK और पंजाब के इलाकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, जिसका हमने आपको गुज़श्ता रोज़ इसके बारे में बताया भी गया था कि DIG पंजाब की जानिब से भी पूरे पंजाब की जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त हाई अलर्ट कर दी गई है। इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी है वो भी हाई अलर्ट कर दी गई है और KPK में भी सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट है। तमाम सिक्योरिटी इदारे बशमूल बॉर्डर फोर्सेस के इस वक्त जो है उनकी हर तरफ नजर है ताकि दहशत गर्दी की कोई और जो है वो कोशिश ना हो। और ये जो सीरीज है जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के, जिसका अभी एक ही वनडे मैच हुआ था और मजीद इसके 2 वनडे मैचेस बाकी है और उसके बाद एक ट्रायंगुलर सीरीज भी होनी है जिसमें तीसरा जो मुल्क है वो जिम्बाब्वे है जो कि पाकिस्तान पहुंच चुका है। तो उनकी ख्वाहिश थी कि किस तरीके से इस जो टूर को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए और श्रीलंकन खिलाड़ी वापस चले जाए, जिस पर जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और बल्कि इंटरनेशनली सतह पर जो इंडिया की जो ख्वाहिश थी और जो मजमूम कार्रवाइयाँ की गई, जिस तरीके से वाना में किया गया या इस्लामाबाद में जो खुदकश धमाका करवाया गया, इन सब के पीछे मकासद सिर्फ और सिर्फ ये थे कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो आने वाली जो क्रिकेट है जो कि काफ़ी अरसे बाद बहाल हुई है उसको किस ना किस तरीके से ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान का इमेज एक बार फिर जो है दुनिया के सामने जो है वो गलत तरीके से पेश किया जाए। लेकिन जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन तमाम वाक़यात को रोका है, दूसरी जानिब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो है श्रीलंका के सदर से टेलीफोनिक रब्ता किया और इनको इस बात का यकीन दिलाया कि आपके खिलाड़ी यहाँ पर महफूज है और हम जैसे पाकिस्तानियों की हिफाजत करते उससे बढ़कर अपने मेहमानों की हिफाजत करेंगे। जिस श्रीलंकन टीम
ٹیم جو ہے وہ اپنا دورہ مکمل کرے گی. کوئی کھلاڑی واپس آنے کی ضد نہ کرے. اگر کسی کھلاڑی نے واپس آنے کی کوشش کی تو ان پر نہ صرف جرمانہ ہوگا بلکہ دیگر جو تعدیبی کارروائی ہے وہ بھی ہوگی. جس کے بعد سری لنکن ٹیم جو ہے وہ اب جو کہ میچ آج ہونا تھا اب وہ کل ہوگا اور اس کے بعد تیسرا جو میچ ہے وہ سنڈے ہوگا. اسی حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو ہمارے کپتان ہے شاہین آفریدی اور دیگر جو سینئر کھلاڑی ہے انہوں نے سری لنکن بورڈ اور سری لنکن کرکٹ ٹیم کا شکریہ ادا کیا ہے. اور وہ شکریہ کیا ہے آئیے سنتے ہیں. تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. کل انشاءاللہ دوبارہ نئے سٹوریز کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.